حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی رعایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید، احادیث اور اسلامی روایات میں بہت تفصیل سے ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا ہمیں ان کی عظمت اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ بچپن اور نبوت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود نبی اور بادشاہ تھے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تربیت بہت عمدہ طریقے سے کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بچپن ہی سے حکمت اور دانشمندی عطا فرمائی تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ حکومتی معاملات میں حصہ لیتے اور مختلف مسائل کے حل میں ان کی مدد کرتے۔ نبوت اور بادشاہت کا آغاز۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبی اور بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا جن میں حکمت، دانشمندی، جنات اور جانوروں پر حکمرانی اور معجزات شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکمرانی کے دوران عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی اور اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور دانشمندی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور دانشمندی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑ رہی تھیں۔ دونوں عورتیں دعویٰ کر رہی تھیں کہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ انہوں نے حکم دیا کہ بچے کو دو حصوں میں کاٹ کر دونوں عورتوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب ایک عورت نے سنا کہ بچے کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس نے فوراً کہا کہ بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے تاکہ بچے کی جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کی محبت اور رحم دلی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ یہی عورت بچے کی حقیقی ماں ہے اور بچے کو اسی کے حوالے کر دیا۔ قوم سبا کی خوشحالی۔ قوم سبا کا علاقہ انتہائی زرخیز تھا اور یہاں کے لوگ زراعت اور باغبانی میں ماہر تھے۔ مرب میں ایک عظیم الشان بند ڈیم تھا جو پانی کو ذخیرہ کرنے اور آبپاشی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بند قوم سبا کی خوشحالی اور ترقی کا بنیادی سبب تھا۔ ان کے باغات اور کھیت سرسبز و شاداب تھے اور ان کے پھل اور فصلیں بہترین ہوتی تھیں۔ قوم سبا کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بے شمار نعمتیں عطا کیں لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کی۔ وہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے اور بت پرستی کرنے لگے۔ ان کے درمیان بدعنوانی، ظلم اور فسق و فجور پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبیوں کے ذریعے نصیحت کی لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت بہت وسیع تھا اور اللہ نے انہیں انسانوں، جنوں اور پرندوں پر بھی تسلط عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب قوم سبا کی ناشکری اور بت پرستی کی خبر ملی تو انہوں نے وہاں اپنے پرندے کو بھیجا تاکہ وہاں کی حالت معلوم کی جائے۔ پرندے نے جب واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ قوم سبا ایک عظیم الشان اور خوشحال قوم ہے لیکن وہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھیجا۔ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں اپنی حکومت کی اطاعت کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس کا رد عمل۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورہ کیا۔ وہ اس خط کی سنجیدگی کو سمجھ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیغام کو اہمیت دی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف بھیجے تاکہ ان کا امتحان لے سکے اور ان کی حکومت کی عظمت کا اندازہ لگا سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحائف کو قبول نہیں کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی۔ ملکہ بلقیس کا ایمان لانا۔
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मलिका बल्कीस के तख्त को उनके पहुंचने से पहले ही अपने दरबार में मंगवा लिया था। जब मलिका बल्कीस ने अपने तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में देखा तो वो हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, क्या ये तुम्हारा ही तख्त है? मलिका बल्कीस ने कहा, ऐसा ही मालूम होता है। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बल्कीस को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और उन्हें बुत परस्ती छोड़ने की नसीहत की। मलिका बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातों को सुना और अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया। वो ईमान ले आई और अल्लाह की इबादत करने लगी। कौम सबा की तबाही। मलिका बल्कीस के ईमान लाने के बाद भी कौम सबा के लोगों ने अपनी गुमराही से बाज न आए। अल्लाह ताला ने उन्हें बार बार अपने नबियों के जरिए नसीहत की, लेकिन उन्होंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। अल्लाह ताला ने कौम सबा पर एक शदीद तूफान और सैलाब भेजा जिसने उनके अजीम अलशान बंद डैम को तबाह कर दिया। इस सैलाब ने उनके बागात, खेतों और घरों को बर्बाद कर दिया और उनकी खुशहाली को खत्म कर दिया। कौम सबा की तबाही की वजह उनकी नाशुक्री और अल्लाह की नाफरमानी थी। नतीजा, कौम सबा का वाक़या हमें यह सबक देता है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नाफरमानी से बचना चाहिए। हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अदल व इंसाफ पर कायम रहना चाहिए और दूसरों के हुकूक को पूरा पूरा अदा करना चाहिए। कौम सबा की तबाही हमें ये इबरत देती है कि अल्लाह की नाफरमानी और बदअमालियों की सज़ा बहुत सख्त होती है। जिन्नात और जानवरों पर हुक्मरानी। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और जानवरों पर भी हुक्मरानी अता फरमाई थी। वो जिन्नात को मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इमारतें बनाना, खुदाई करना और दीगर मशक्क़त तलब काम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्म पर जिन्नात ने बैत अल मक़दस की तामीर में भी हिस्सा लिया। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की ज़ुबान समझते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त की बात करें तो वो भी उनकी अज़मत और अल्लाह की नेमतों का एक नमूना था। उनके तख्त के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शानदार और जवाहरात से मुरस्सा था। इस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया की हर चीज़ पर नज़र रखते थे और उनके हुक्म से हर चीज़ उनके सामने पेश होती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों का वाक़या। एक और मशहूर वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों का है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे कि एक वादी में पहुंचे जहां चींटियां रहती थीं। चींटियों की मलिका ने अपने साथियों को कहा कि अपने घरों में चली जाएं ताकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर उन्हें रौंद ना डाले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटियों की ये बात सुन ली और मुस्करा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उन्हें जानवरों की ज़ुबान समझने की सलाहियत अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी एक मोजिज़ा के तौर पर बयान की जाती है। रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में खड़े थे और अपने असा पर तकिया किए हुए थे। जब उनकी वफ़ात हुई तो वो इसी हालत में खड़े रहे। जिन्नात जो उनके हुक्म से मुख्तलिफ काम कर रहे थे, उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म न हुआ और वो काम करते रहे। कुछ वक्त बाद एक दीमक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के असा को खा लिया और वो गिर गए। इस वक्त जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का इल्म हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनकी हुक्मरानी का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी हिकमत और दानिशमंदी की मिसालें आज भी हमें सबक देती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ये वाक़यात हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में अदल व इंसाफ पर कायम रहना चाहिए। अक़वाल। अदल व इंसाफ। अदल के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। इल्म की अहमियत। इल्म सबसे बड़ी दौलत है और ये ऐसी दौलत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हर काम को आसान बना देगा।
शुक्र गुजारी। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो ताकि तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो। वक्त की कदर। वक्त की कदर करो क्योंकि ज़ाय किया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आजिज़ी और इनकिसारी। आजिज़ी और इनकिसारी इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। सब्र और तहम्मुल। सब्र और तहम्मुल से बड़ी मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। मेहनत और कोशिश। मेहनत और कोशिश से ही कामयाबी हासिल होती है। नसीहतें। ईमानदारी और सदाकत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमेशा ईमानदारी और सदाकत पर जोर दिया। वो कहते थे कि ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी खूबी है और उसके बगैर कोई भी इंसान हकीकी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह की इबादत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हमेशा अल्लाह की इबादत की नसीहत की। वो कहते थे कि अल्लाह की इबादत ही इंसान की जिंदगी का हकीकी मकसद है और इसी से सुकून क़ल्ब हासिल होता है। अदल व इंसाफ पर कायम रहना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहने की तालीम दी। वो कहते थे कि अदल व इंसाफ के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। इल्म की तलब। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म की तलब को बहुत अहमियत दी। वो कहते थे कि इल्म इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है और इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाता है। खिदमत खुल्क। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमेशा दूसरों की खिदमत करने की नसीहत की। वो कहते थे कि दूसरों की खिदमत करने से अल्लाह की रज़ा हासिल होती है और इंसान की जिंदगी में बरकत आती है। शुक्र गुजारी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की नसीहत की। वो कहते थे कि शुक्र गुजारी से नेमतों में इजाफा होता है और इंसान की जिंदगी में खुशहाली आती है।